Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawhar. So friends, we have started with the SYBSc Chemistry Paper 3, that is Unit 2, Classical Methods of Analysis. So friends, so far now we have discussed about the various type of titrations, the various indicators that are used in titrations, and then we have discussed about the apparatus used in titration. How to calibrate that apparatus, that also we have discussed in our last lecture. So now we have proceed further for the next part of the chapter, that is actual calculations in titrimetry. Okay, so if you know the titration calculation, then only we can find out the unknown concentration which is present in your sample. Okay, so in our last lecture we have discussed about the basic calculations in titrimetry. The first one was molarity and normality. Okay, so in case of molarity, it is defined as the number of moles of solute or analyte dissolved per liter of the solution. Okay, that we have already discussed, so I am going little fast. So how many moles of a solute are dissolved in per liter of the solution is called as molarity. So molarity is given by abbreviation capital M. Okay, so molarity is equal to moles divided by liter. So suppose you want to calculate how many moles, then you have to cross multiply the things. So moles are equal to molarity into liter. Okay, so for this way you can find out the molarity of your given solution. Okay, so when you want to prepare some solutions, you can use this formula. So for relatively small quantities, every time we cannot prepare the solution in liters, so sometimes we use smaller version or smaller quantities, that is calculated in milliliter. Okay, so simply you have to multiply it by 1000, so moles will become millimoles. Okay, millimoles are equal to molarity into ml. Okay, so molarity will remain as it is, moles will become millimoles and liter will become milliliter. So where the molarity is expressed in m mole per ml. तो ये m क्या है, स्मॉल m is a number of moles. Okay, so जैसे हम बोलते हैं ना 2 moles, 3 moles, 10 moles, so this is the small m. So m mole per liter, ml, milliliter. Now for a reaction that I have explained in last lecture, suppose you are reacting your titrant and titrant with each other. Okay, so A is your titrant, that is in your conical flask, and titrant is T, that is in your burette. So it will give you the product P. A when reacts with T, it gives you product P. So A plus T gives you P. Since the reaction is in the ratio 1:1, so consider जितने मोल आपको A के लग रहे हैं उतने ही मोल आपको T के लग रहे हैं, both have same ratio, then number of m mole of A is equal to number of m moles of T. m मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, that can be 2, 3, 10 whatever, और 1 मोल. सो जितने मोल आपको A के लगे उतने ही मोल आपको T के लगे. So but we know moles are equal to molarity into liter, so that we will substitute in this formula. So molarity of A into ml of A, that is our formula. Moles is equal to molarity into liter. तो मोल इतने हैं तो उसके नीचे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, मोलारिटी इंटू एम एल इज इक्वल टू मोलारिटी टी इंटू एम एल ऑफ टी. So therefore if you multiply it, you will get MAVA is equal to MTVT. Number of moles into volume of A is equal to number of moles M into volume of T. MAVA is equal to MTVT. So it is very simple, as like N1V1 is equal to N2V2. So from this formula you can calculate the unknown concentration in your sample. Okay, so now we will go towards the normality. What is normality? For such cases where reactions are not in proportion of 1:1 basis, the calculations are quite often based on normality.
अगर आपका कैलकुलेशन 1:1 बेसिस पे नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ नॉट। जितने मोल्स आपको ए के लगेंगे उतने ही मोल्स आपको टी के लगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। समटाइम द रेशो कैन बी डिफरेंट, 1:2, 1:3, ओके, बट ऑलवेज देर इज़ अ रेशो। हमेशा वहाँ पे एक रेशो होना चाहिए, because we know that our calculation should be stoichiometric, that we have already discussed in our very previous lectures, that whenever you want to start a titrimetry reaction it should be stoichiometric. Means what? There has to be a ratio, a particular ratio, whatever solutions are required. तो हमेशा वो रेशो सिर्फ 1:1 नहीं रहेगा, it can be a different one, and in that case you cannot take the molarity, so you can calculate normality. Okay, so just see the definition. Normality of a solution is equal to the number of equivalent of the substance per liter of the solution. ओके समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ नॉर्मैलिटी। फर्स्ट तो आप देख लो कि नॉर्मैलिटी कैपिटल एन से दिखाते हैं, जैसे मोलारिटी एम से दिखाते हैं, उसी तरह नॉर्मैलिटी एन से दिखाते हैं। तो नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ओके, ये इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं दैट वी विल सी लेटर, लेकिन जैसे वहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स देखा था, वैसे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी सब्सटेंस पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन। तो पर लीटर सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट्स है उसे हम कहते हैं नॉर्मैलिटी। वेरी सिंपल, पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नॉर्मल आपके सॉल्यूट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कितने इक्विवेलेंट ऑफ योर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज नॉर्मैलिटी। एंड इन केस ऑफ मोलैरिटी इट वाज पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस है। हाँ, वहाँ पे क्या था, कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस। नॉर्मैलिटी में क्या है, कितने इक्विवेलेंट्स ऑफ द सब्सटेंस। वेरी डिफरेंट बट वेरी लिटिल बिट डिफरेंट, आपको इजीली समझ में आएगा। सो सिंबल एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, जस्ट लाइक मोल स्टैंड्स फॉर मोलर। यहाँ पे भी वो वही कह रहे हैं कि मोलर में जैसे हम लोग एम यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मैलिटी में हम लोग एन यूज़ कर रहे हैं। सो नॉर्मैलिटी एन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय मिलीलीटर। अगर आप एम मिलीलीटर नहीं यूज़ करना चाहते तो हम लोग से कहेंगे नॉर्मैलिटी एन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर। इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर। एक बार आप ये फिर से देख लो, यहाँ पे मोलैरिटी था, सो मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर। यहाँ पे क्या था, मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर। सो इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट देन मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी इंटू मिलीलीटर। वहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू लीटर। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इक्विवेलेंट्स आर इक्वल टू नॉर्मैलिटी इंटू लीटर। तो हम लोग मिली में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी इंटू मिलीलीटर। ओके, so now we will calculate the formulas. Equivalents are based on the same concept as moles, but the number of equivalents will depend on the number of reacting units supplied by the each molecule or the number with which it will react. Okay, अभी इसका मीनिंग क्या है देख लो। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, वी आर डायरेक्टली कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को इजीली मिल जाते, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व किया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ओके, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, हियर वी आर कैलकुलेटिंग द मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मैलिटी इंटू मिली लीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट यू वांट टू एक्चुअली कैलकुलेट। सी हियर, ये जो इक्विवेलेंट है वो किस पे डिपेंड करता है कि इन योर रिएक्शन व्हाट हाउ मेनी यूनिट्स आर रिएक्टिंग। ओके, तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग देखेंगे। सी, इन 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ H+ आयन इज प्रेजेंट। ओके, अगर आप कंसिडर करते हो 1 मोल ऑफ HCl, तो उसमें रिएक्टिंग यूनिट कितने हैं आपके, 1 मोल ऑफ H+। अगर HCl है तो
तो उसमें H भी 1 मोल होगा एंड Cl भी 1 मोल होगा। ओके, तो दोनों को हम मिला के 1 मोल ऑफ HCl बनता है। तो इन केस ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, 1 mole of H plus ion is present and therefore number of reacting unit is 1। तो HCl में H plus कितने मोल है? 1, और उसमें रिएक्टिंग भी उतने 1 है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि उसके इक्विवेलेंट यूनिट भी कितने हैं? 1, दैट इज़ 1 H प्लस। ऐसे नहीं पता चलेगा तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। इन केस ऑफ H2SO4, 2 मोल्स ऑफ H प्लस आर प्रेजेंट। देखो H2SO4, तो यहाँ पे रिएक्टिंग यूनिट कौन सा है? एसिड है, तो ऑब्वियसली रिएक्टिंग यूनिट विल बी H प्लस। तो H प्लस यहाँ पे कितने हैं? 2। यस, सो देयरफॉर इन H2SO4 देयर आर 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस विच आर रिएक्टिंग और प्रेजेंट। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स आर रिएक्टिंग यूनिट्स आर 2। यस, सो HCl में एक ही H है, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग यूनिट इज 1। इन केस ऑफ H2SO4, H2 है, सो इन दैट केस द रिएक्टिंग यूनिट्स आर 2। देख लो आप। ओके, सो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैन देयरफॉर बी कैलकुलेटेड फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स एज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू number of reacting units per molecule। ओके, ये फॉर्मूला देख लो आप। हियर व्हाट यू आर डूइंग, द इक्विवेलेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट मोल इंटू नंबर ऑफ रिएक्टिंग यूनिट इन योर पर मोलिक्यूल। तो वहाँ पे जितने भी मोलिक्यूल आपके एक्टिंग है उतने हम लोग क्या करेंगे? वी कैन यूज एज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि उसमें रिएक्टिंग यूनिट कितने हैं? 1, सो देयरफॉर वी विल डिवाइड इट बाय 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसमें रिएक्टिंग यूनिट कितने हैं? 2। तो देयरफॉर इन केस ऑफ H2SO4 हाउ वी विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट? दैट इज मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट सेम ही होगा अगर उसमें रिएक्टिंग यूनिट सिर्फ एक है, जैसे कि HCl उसमें क्या है? H इज ऑल्सो 1, Cl इज ऑल्सो 1। बेसिकली H इज 1, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट, क्योंकि हम लोग उसको डिवाइड किससे करेंगे? 1 से, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 रिएक्टिंग यूनिट। सो इन केस ऑफ HCl the equivalent weight is equal to the molecular weight, see the first one। but in case of H2SO4 वहाँ पे reacting unit कितने हैं? 2, so therefore equivalent weight is equal to molecular weight divided by 2। okay, so in this case equivalent weight of H2SO4 will not be equal to equivalent weight of its, because वहाँ पे H plus unit कितने हैं? 2, and therefore इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 आपको क्या करना होगा? मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो आई यू गेटिंग दिस पॉइंट? HCl में एक ही H है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। इन केस ऑफ H2SO4 देर आर 2 H। ओके, सो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। सेम केस इज फॉर ऑल एसिड्स वेयर ओनली 1 H इज प्रेजेंट, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन जहाँ पे 2 H है, 3 H है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट को उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट वन। दस द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन यूज़ द अर्लियर फॉर्मूला। ये सिंपल फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्टिंग एजेंट, रिएक्टिंग एजेंट। तो हम लोग यही फॉर्मूला ज़्यादा याद रखेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूला यू जस्ट रिमेंबर दिस, दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय
इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, जितना वेट आपने लिया है 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, डिवाइड इट बाय equivalent weight of the substance in gram. Okay, so normality of the solution is equal to number of equivalents per liter, number of equivalent per liter. So finally we can say that normality is equal to weight of the substance in gram divided by equivalent weight of the substance. Okay, so that is our formula. सो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी क्या है? ओके, हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी एंड व्हाट इज़ मोलैरिटी। सो इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सी हियर, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू नंबर ऑफ रिएक्टिंग यूनिट। ओके, ये फार्मूला से हमें पता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना भी आपका मॉलिक्यूलर वेट है उसको किससे डिवाइड करो? विद द रिएक्टिंग एजेंट्स, रिएक्टिंग नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक ही है इन केस ऑफ HCl, सो देयरफॉर वी आर डिवाइडिंग इट बाय 1। इन केस ऑफ H2SO4 2 यूनिट रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया है। सो हियर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू नंबर ऑफ रिएक्टिंग यूनिट। See here, this is the formula. Equivalent is equal to mole into number of reacting unit. Number of reacting unit मतलब HCl में यूनिट कितने हैं? 1. H2SO4 में यूनिट कितने हैं? 2. So this is the formula. Dividing both by liter. हम दोनों ये जो है इक्वल वैल्यू जो है उसके लेफ्ट में और राइट में दोनों को लीटर से डिवाइड करेंगे। So equivalent weight per liter is equal to mole per liter into number of reacting units. So therefore हमें पता है कि equivalent weight divided by liter is equal to normality. Mole divided by liter is equal to molarity and number of mole are given by the value n. Okay, तो ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय लीटर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय लीटर इज इक्वल टू मोलैरिटी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये वाले अर्लियर स्लाइड में देखे हुए हैं, है ना। सो देयरफॉर दिस फॉर्मूला हैज़ कम दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n। वेरी सिंपल, वेयर n इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग यूनिट्स पर मॉलिक्यूल और स्टोक्योमेट्रिक फैक्टर। n जो है स्मॉल n वो क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग यूनिट। जैसे HCl में 1, H2SO4 में 2। नथिंग इज डिफ़िकल्ट हियर, ओनली यू फाइंड द टर्म डिफ़िकल्ट कि ये क्या है? रिएक्टिंग यूनिट। ओके, तो डिफ़िकल्ट है ओनली टर्म, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी है। नंबर ऑफ रिएक्टिंग यूनिट मतलब जो पार्ट एक्चुअल रिएक्ट करेगा। सो जैसे HCl में कौन रिएक्ट करने वाला है? H+, तो इट इज़ ओनली 1, so reacting unit is 1. In case of H2SO4 the reacting unit is 2. So therefore normality is equal to molarity into n, where n is number of reacting unit. Now from the formula we can find out that equivalent weight of the substance is equal to molecular weight divided by n, है ना। So equivalent weight of the substance, suppose you express it in gram per equivalent weight, then molecular weight also you have to take gram per mole divided by n, that is equivalent per mole. तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है? दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n। ये जो आगे यूनिट लिखे हुए हैं इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये जो यूनिट्स हैं जस्ट फॉरगेट इट। व्हाट यू रिमेंबर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n। ओके, तो दैट इज़ द सिंपल फॉर्मूला। दस द अर्लियर इक्वेशन जो हम लोगों ने लिखा था MAVA इज इक्वल टू MTVT, इट विल बिकम नाउ TMAVA इज इक्वल टू AMTVT। इसका मीनिंग क्या है कि जितने यूनिट, जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको M के लगने वाले, दैट विल गो टू राइट साइड, दैट इज़ A, and whatever units are required for
T that will come to the left side, that is for your reacting units, that is A. So this can be the formula, very simple, TMAVA is equal to A MTVT. जितने यूनिट यहाँ से लग रहे हैं वो राइट हैंड साइड में जाएंगे और जितने यूनिट आपको लेफ्ट हैंड साइड में लग रहे हैं वो राइट हैंड साइड में जाएंगे. सो दिस इज़ वेरी सिंपल टू द फॉर्मूला ऑफ NAVA इज इक्वल टू NTVT. जैसे हम लोगों ने इजीली पहले देखा था, N1V1 इज इक्वल टू N2V2. सिमिलरली NAVA इज इक्वल टू NTVT. ये अभी समझने में डिफ़िकल्ट है, बट व्हेन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एंड व्हाट आर द फर्दर कैलकुलेशंस दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू.